گفتگو کرتے ہیں آج کے موضوع پر اپنے علماء کرام سے۔ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناپ تول میں کمی کے باعث اس احساس سے جو ہم محروم ہیں، اس حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں دین اسلام میں، اس پر بات کریں گے آپ دونوں حضرات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اسی ناپ تول میں کمی کے باعث جو معاملات رہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غالباً ہم کسی دن اس حوالے سے گفتگو کر چکے کہ ہمیں پیش رو، یعنی جو ہم سے پہلے ہو چکے، گزر چکے، ان کے انجام بتائے گئے۔ اب یہ کہ ہمارے ملک میں ہڑپا، موئنجو ڈارو، ٹیکسلا وغیرہ، یہ وہ تہذیبیں تھیں کہ باقاعدہ ان کا نام تھا، مگر انہیں دھسا دیا گیا۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو کہ ہم نے مجرموں کا کیسے تعاقب کیا، ان کو کیسے پکڑا۔ ایک انسان کو عقل ملی کہ وہ غلط اور صحیح، سچ اور جھوٹ میں فرق کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل والوں پر یا پہلی امتوں پر ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آتا تھا۔ ان کے دروازوں پہ رات کو جو گناہ کرتے تھے ان کے دروازے پہ لکھ جاتا تھا کوئی ہاتھ کہ اس نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیا۔ رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر ہوتے تھے۔ یہ قرآن میں ذکر ہے سارا۔ فرمایا میری امت میں یہ سارے گناہ ہوں گے جو پہلی امتوں میں تھے، مگر پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میں فری ہو جاؤں، میں کھلا ہو جاؤں اور پرواہ نہ کروں، گناہ پر دلیر ہو جاؤں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے قہر کو خود دعوت دی، اللہ اکبر، چیلنج کیا۔ تو جو ایسا کرتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا، ہم معمولی سا سر میں درد ہو جائے، اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی ذائقہ پسند نہیں آتا، کسی سے ملنا پسند نہیں آتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بس اب چلے جاؤ، چھوڑ دو مجھے اکیلے کو، یہ حال ہو جاتا ہے۔ صرف تھوڑا سا درد، ہم اس کا عذاب سہیں گے؟ اور میں یہ بیان کرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، کہتے ہیں کم از کم عذاب 3000 سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے سے چھوٹا عذاب، اللہ کی پناہ، ہم اس لائق ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سہ لیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی یا قسمیں اٹھا کر بیچنا یا ملاوٹ کرنا، 2 پیسے تو دے دے گا وقتی طور پر، مگر پوری نسلوں کے لیے وبال بھی ہو جائے گا، اور آپ اپنی اولاد کو وہی پھر ساری عمر دوائیوں میں اور پریشانیوں میں، وہ رقم جو نفع سمجھ کے رکھ لی تھی نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ اس طرح جائے گی۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اور پھر میں یہ دیکھوں کہ ہسپتالوں میں جاؤں، مریضوں کو دیکھوں، مجھے خوف آتا ہے۔ ہمیں جی یا اللہ یہ تکلیف ہمیں نہ ہو، لیکن میں کام وہی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ مفتی صاحب، میں ایک، اب یہ بڑا سخت سوال بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا اس بات نے۔ اگر ایک شخص ملاوٹ والی چیز بیچ رہا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دودھ جس میں کوئی ملاوٹ والی چیز شامل ہوئی ہے، ہم نے وہ پیا اور ہمیں کچھ اچانک ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم سلولی اینڈ گریجولی اس جانے بڑھتے ہیں جس میں خرابی طبیعت ہوتی ہے۔ تو ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی اگر ہمیں کسی کی ملاوٹ زدہ چیز ہماری صحت کو خراب کر رہی ہے اور وہ ہماری ہلاکت کا بھی باعث بنتی ہے، تو کیا وہ مجرم ہوا شخص ڈائریکٹلی ہماری ہلاکت کا؟ اگر ایسا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔
डेफिनेटली जो शख्स इस तरह की मिलावट करके चीज बेच रहा है जो हलाकत का जरिया बन रही है तो पूरा पूरा मुजरिम है ही वही, वो है। और मरकजी किरदार वही है कि वो इस तरह कोई डुप्लीकेट चीज बना के बेच रहा है, और उसके अंदर मेडिसिन भी हो सकती है, खाने पीने की अशिया भी हो सकती हैं। तो ये जालसाजी तो जाहिर सी बात है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी भी किस्म का कोई खोट करे, धोखा करे, वो हम में से नहीं है। तो ये तो धोखे की बड़ी किस्म है। हम में से नहीं का मतलब पता है? मुसलमानों में से नहीं, मुसलमानों में से नहीं, यानी वो हमारा नाम खराब जी। कर रहा मैंने है। इब्तिदा में जी ये हाँ। हदीस पाक जो है तो वो हमारा जो ना पूरा यानी हमारे ट्रैक पे, हमारे रास्ते पे, हमारे मजहब से उसका ताल्लुक नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमारे रिलीजन ने ये हमें गाइडलाइन नहीं दी, ये हमारा तरीक़ेकार, इस्लाम का तरीक़ेकार नहीं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और रही बात जो आपने शुरू में जिक्र किया, नाप तोल में कमी, ये तो इतना कॉमन है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में इसके बड़े तफसील से अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही और बर्बादी हो उन नाप तोल में कमी करने वालों की, कि जो इस तरह का मामला करते हैं कि जब लोगों से लेन देन करें, नाप तोल या वजन की कोई चीज लें, तो अपने लिए तो भरपूर चाहते हैं, पूरा पूरा हमें वजन या नाप तोल कंप्लीट मिलना चाहिए, और जब दूसरों को देते तो उसके अंदर युखसिरून, वो डंडी मार जाते हैं, कमी करते हैं। पेट्रोल में देख लीजिए, कमी करने वाले मौजूद हैं जो पेट्रोल को किसी तरह ऐसा कांटा बना लेते हैं। गाड़ी में मीटर लगे हुए होते हैं, उसकी वो रीडिंग को दुनिया ऐसा में कम कहीं कर नहीं देते होता हैं। कि आपको पेट्रोल वाला खुद कहे कि जी ये देख लें आप लोग अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि किया है उन्हीं में से लोगों ने, तो जी अब हाँ। वो मजबूर हैं कि लोग निकल तो के रीडिंग देखें। ऐसी कर देते हैं कि बज़ाहिर तो सब फिगर सही आ रहे होते हैं, लेकिन पेट्रोल कम आ रहा होता है। मुफ्ती साहब, ये तो है मिलावट की और नाप तोल में कमी की बात। एक और जो बहुत बड़ा इस मुल्क में तो बहुत ही बड़ा मसला है, रेडी पर अगर कोई फ्रूट बेच रहे हैं तो उसमें से जो खराब हालत का फ्रूट है वो सस्ते में बेच देते हैं उन लोगों को जो गरीब हैं, जिन्हें जरूरत है लेकिन वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो तो ये भी तो गुनाह हुआ। देखिए, सस्ता अगर कोई चीज को बेच रहे हैं वो एक अलग चीज ये है। जो खराब अगर चीज वो- आपने अपनी उस पर वो रखी हुई है, खराब को अच्छा कह के नहीं बेच सकता, सामने है जैसा है, और अगर कोई धोखे खा लेता है कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो उसमें शामिल कर लें, अगर वो ये जो पेटियों में मिक्स हाँ, करते यानी हैं, ऊपर से वो चीज अच्छी धोखेबाजी होगी हो रहा है। और नीचे से जी जी, आम का सीजन वो आ रहा है, नीचे cheating से खराब आम जी। निकलते हैं। लेकिन खुद अगर कोई डिफेक्टिव चीज है और उसको डिक्लेयर करके देता है हाँ। कि जी ये इसके अंदर ऐब है और अच्छा। इसकी कीमत कम है, ठीक इसकी है। कीमत ज्यादा है, फिर देता है, तो वो हरज नहीं है कि खरीदने वाला राजी है कि भाई इस ऐप के साथ मैं लेता हूँ। आमतौर पे कोई भी चीज होती है, फ्रिज होते हैं या घर में इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं, उसमें कभी कोई फॉल्ट होता है तो कंपनी भी उसको कम बिल्कुल कीमत में ठीक फरोख्त है, करती है, बिल्कुल तो सही वो ऐप जाहिर करते हैं तो बेच सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, हमें एक अफसोस से कहना पड़ता है कि जापानीज जो गाड़ियां या कोई भी चीज बनाते हैं, उनकी सारी चीजें, फीचर जितने भी होते हैं, पूरी डिटेल में लिख के भेजते हैं वो लोग। अगर जरा सा भी कोई डिफेक्ट होगा जो हमारी निगाहों से बहुत पोशीदा होगा, वो भी उसमें डिक्लेयर करके लिखते हैं, और उसकी वजह से कीमत में भी फर्क रखते हैं। ये फुल ग्रेड की गाड़ी है, इसके रेट ये हैं, और इसके अंदर कोई अगर ऐप था या कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई कमी है, इसके रेट्स ये हैं। हालांकि बाजार देखने में गाड़ी बिल्कुल सेम नजर आएगी। वो चीजें जो इस्लाम ने सिखाई थी, और ख्यार ऐप एक कहलाता है कि ख्यार ऐब यानी कोई चीज डिफेक्टेड हो, उसके अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है खरीदने वाले को कि अगर उसको ऐब मिल गया तो वो उसको रिटर्न कर सकता है, कि अभी घर पर वो चीज ले गया और 2-3 दिन इस्तेमाल की, मालूम है उसके अंदर ऐब है, अब वो उसको मालिक को रिटर्न कर देगा कि भाई इसके अंदर ऐब मिला मुझे। यहाँ अगर कोई लौटाने जाए तो झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ले जी, गए, यहाँ से यानी चले गए, पूरे दुकान से चैप्टर हैं, खत्म। फिक़ह के अंदर इसके चैप्टर हैं, हर उसके किस किस माने में हमें बैर कैंसिल कर देनी चाहिए, किसमें नहीं। लेकिन आज मार्केट के अंदर सबने उसूल अपने बना रखे हैं। मेजोरिटी के उसूल जो है ज्यादातर सूद पर मबनी है। माल जो लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो सब उधार पे चल रहा है, वो चीजें खत्म। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजों को, अजनास को फरमाया कि वो हाथ के हाथ सौदा होना चाहिए। आजकल होता ही है कि सौदा पूरा पूरा घर उसमें अपने शॉप में डलवा लिया, पेमेंटें रुला रुला के कर रहे हैं, कपड़े का, राशन का, परचून का, सबका काम इसी तरह चल रहा है। इसकी वजह से ये होता है कि इतनी अर्निंग के बावजूद भी पूरी कौम रोती है कि बरकत नहीं है। बरकत इसीलिए नहीं कि जो इस्लामी उसूल थे कि एक मजलिस में जब अक्द हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसकी पेमेंट दे के चीज ले ली जाए। अल्लाह साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये इसलिए कि ये तो हुई ग़िज़ा की बात। मैं पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ, हम मुसलमान, हम दवाओं के साथ क्या कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। कितने, यानी हमारे पूरे पूरे शहर, कराची है, हैदराबाद तो मशहूर है इस काम के लिए कि हम जाली दवाएं बना रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अगर टाइम हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं पोलियो के बारे में लोगों से बात करना चाहता हूँ, जब कभी आपको टाइम बिल्कुल होगा। ठीक है। ये मिलावट, खा वो दवा, अच्छा जी, विटामिन डी से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर, और विटामिन का वहां गुजर तक नहीं है। बिल्कुल नहीं होता।
तो ये क्या है? फिर वो जो डॉक्टर्स खास तौर पर ऐसी दवाएं सजेस्ट करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको भी प्रॉफिट हो रहा उनको होता है। प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी एक कितना प्रिस्क्रिप्शन वो बड़ा अच्छा लिखते बिजनेस हैं है। जी। ये तो यानी एक जानों से खेलने वाला महज़ब पेशा बन गया कि अच्छे डॉक्टर हैं, ये नहीं कहता सारे बुरे डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के अंदर भी ऐसे हैं कि जो अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वही लिखेंगे, दवाई इस पर शामिल लोग करते हैं शामिल जिससे करेंगे। उसको प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, उसके अंदर कमीशन मिल रहा नुकसान क्यों ना हो। और इससे बढ़ के एक अलग में अताई, लॉटरी वही भेजेंगे वहाँ पे जहाँ पे कमीशन मिल रहा है। और अताई हालांकि डॉक्टरों एक का दिन चक्कर। पहले वो एक्सरे करा के आया, नहीं मानेंगे, नहीं मानते। वहाँ से करवा के फला लाओ। जगह से करवा जी जी, लेबोरेटरी फिक्स होती है कि भाई उस लेबोरेटरी से करवाना है। तो यानी बंदा अल्लाह से पनाह वसीम मांगता है कि बीमार ना हो, लेकिन यहाँ तो बीमार होके और यहाँ एक सबसे फुटबॉल बन ज्यादा जाता है। खतरनाक बात जो हम पहले भी कर चुके हैं वो ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये नहीं। गुनाह है। जी जी, उन्हें ये पता है कि ये शायद मौशरती तौर पर कुछ गलत काम हो, लेकिन इतना बड़ा गुनाह है। और रसूल अल्लाह ने जब फरमा दिया कि वो हम में से नहीं जो मिलावट कर रहे हैं इस तरह की, हमें जी। ये बात का एहसास तो ही ये नहीं। रिकवरी के लिए कि जो हमने अपनी तालीम पे लगाया या बच्चों को अच्छा पढ़वाना है, तो उस रिकवरी के लिए पेशेंट से खेलते और हैं। सैकड़ों ऐसी दवाएं मुफ्ती साहब इस वक्त पाकिस्तान में बिक रही हैं जो दुनिया भर में अलाउड ही नहीं है जी हाँ, बेचनी, बिल्कुल। क्योंकि वो आपकी जिंदगी में को और खतरे में डालती हैं ना कि आपको बेहतर करती हैं। बच्चों की ऐसी दवाएं हैं, कफ सिरप्स हैं जो कि बैंड हैं, एक्सपायरी डेट को बदल के हम बदल बेचते कर दे हैं। देते हैं। वो कभी आप स्टिकर हटाए, नीचे से एक और एक्सपायरी डेट निकल रही होती जी है। हाँ, तो तो ये सारे मामलात हैं जिस पर यकीनन हमें बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, आप लोग इस मामले पर बहुत सोच समझ कर हर चीज किया करें। हम अगर सब बतौर मुआशरा मिलकर इन सारी चीजों के खिलाफ खड़े होंगे तो लाजमी हो जाएगा, मजबूर हो जाएंगे वो लोग कि अपनी जिंदगियों में, अपने रवैयों में, अपने तौर तरीकों में बेहतरी लेकर आएं। तो हमारा ये काम है कि हम बतौर कौम एक हों ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। फसी भाई, आपसे कलाम की दरखास्त है।